एक नई विस्की आई है ग्लेनफिडिक 16। मुझे नहीं पता दुनिया में इसका किसी ने रिव्यू किया है नहीं किया है, बट गेट रेडी फॉर अ वेरी गुड रिव्यू। हाय गाइस, आई एम योर होस्ट। ये है ग्लेनफिडिक 16। ये एक लिमिटेड एडिशन विस्की है। लिमिटेड एडिशन काफ़ी मिसलीडिंग वर्ड्स होते हैं, अगर लोगों को पसंद आई तो शायद ये कंटिन्यूएशन में आ सकता है। यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला 1 टीम, दिस इज फॉर द एस्टन मार्टिन एडिशन। पे एस्टन मार्टिन का लोगो भी है। सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की लिमिटेड एडिशन। यहाँ पे ये अमेजिंग बॉटल है, नोएडा से ली है 8,700 रुपये में। At Glenfiddich, true mastery begins when instinct takes the lead, a moment when the senses guide the craft with the confidence only intuition can provide. Much like a F1 driver, when a decision relies on the driver's intuitive connection with the car, though technology continues to evolve, over our 137-year tradition remains rooted in the power of the malt master's senses. Today, under the expertise of Brian Kinsman, no whiskey leaves without passing his nose. No profile is complete until it feels instinctively right. Oak cask बनाया हुआ है, American oak cask, first fill American oak cask, and second fill bourbon casks. What is missing? Sherry is missing. So 15 and 18 में जैसे कि आप जानते हैं 18 में ज़्यादा शेरी है, 15 में थोड़ा कम शेरी है, एंड एंट्री लेवल में हल्का फुल्का शेरी है, प्लस यूरोपियन ओक कास्ट की खूबी है। This has none of that, guys. This is probably a departure from that, or an attempt. The 16-year-old is a testament to that feeling, formed through a marriage of American oak wine casks, new American barrels, and second fill bourbon casks. This whiskey shares a sweetness of its own. Rich notes of maple syrup, caramelized ginger give way to a silky palette of fresh fruit salad and chantilly cream. The finish, however, speaks for itself. Smooth yet bold, it holds a quality that escapes the ability to be measured. Every drop is a true embodiment of what it means to trust your sense. So this is a 43% alcohol and 700 milliliter. Let's take a look at the bottle. Okay then, let's go. Oh, इसका बिल मैंने इसके अंदर डाला था, बॉटल की शक्ल नहीं देखी थी। Oh man, look at that beautiful blue teal bottle. First time I'm seeing this bottle, and man, the valley of the deer, Glenfiddich. So you see the deer, the triple sides which symbolize air, water, barley. Glenfiddich was the first distillery to have it this way. नोएडा के स्टिकर नोएडा से खरीदी थी। 24 अक्टूबर को बॉटलिंग हुई है। And 16, for those who don't know, my lucky number is 16. Please, you don't care? थोड़ा care कर लो यार, please, can you care a little bit? Okay, we finally found that place, that sweet spot. और इसको खोल रहे हैं। Glenfiddich 16 का रिव्यू हो रहा है यार। कम से कम 200 लाइक तो कर दो। ज़्यादा नहीं मांग रहा, 201 कर दो, चलो 201 लाइक तो कर दो। If you're enjoying this video, you're gonna enjoy the whole thing more. मैं बड़ा उतावला था इसका रिव्यू करने के लिए। थर्सडे का दिन है, Thursday is my favorite day. Check out the cap. Okay, that's how the bottle looks. Probably will never look this good looking. This beautiful Glenmorangie glass is the glass we are gonna use today. Okay, ASMR. ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है बाकी ग्लेनमोरांजी और 16 और इसमें? पहली बात, इसमें कोई भी शेरी का मेंशन नहीं है। क्या भरपूर स्मेल है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चिंगारी बाहर निकाल दी हो। ज़रूर एक बारूदी शरबती ब्यूटीफुल बर्बन वाली एक्सप्रेशन है। शेरी नहीं है बट एक स्वीटनेस है, शायद शेरी जैसी है, रिक्रिएटेड है। Apple, maple syrup, some toffee. Orchard fruits का इतना विफ नहीं आ रहा, ज़्यादातर आपको ओकी स्मेल आएगी, बट दिस इज़ नॉट योर 1000 रुपये वाली स्मेल में एक बरामती है। और अगर लेग्स की बात करूँ तो अच्छे खासे लेग्स है, और विस्की इज़ बिटवीन मीडियम टू हैवी विस्कोसिटी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से विस्की बनाई है। मीन्स अ वेरी गुड स्मेल, इज़ क्वाइट प्लीजिंग। एंड बर्बन का आप ज़्यादा नहीं बता सकेंगे, आपको लगेगा एक स्वीट स्मेल है, इट्स नाइस, इट्स नॉट ऑयली, पर्टिकुलरली ऑयली।
एक अच्छी फिनिश है विथ वुडी ओकी कैरेक्टर। अगर आपने हिबिकी पी है, आपको हिबिकी की याद दिलाएगा। हिबिकी की खूबी क्या होती है? मिजुनारा कास्क। ये इज़ माई फर्स्ट सिप एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस। The first drink of my Glenfiddich 16 is dedicated to Peter Andre. Wherever you are, may God bless you, my friend. Yes, mysterious girl Peter Andre, not some other guy. चिंगारी ज़रूर है ड्रिंक में, एक अच्छी तरीके से फॉर्मुलेटेड है, बट अभी मुझे बिकॉज शेरी इज़ मिसिंग, आई एम नॉट रियली गेटिंग दैट पंजेंसी, नीदर एम आई गेटिंग दैट क्रिएटिव ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन। जबकि इन्होंने पीछे रिच नोट्स ऑफ मेपल सिरप एंड कैरेमलाइज्ड जिंजर गिव वे टू सिल्की पैलेट ऑफ फ्रेश फ्रूट सैलड एंड chantilly क्रीम। ओके, फ्रेश फ्रूट सैलड, वाओ, क्या इसमें फ्रेश फ्रूट सैलड आ रहा है मेरे को? आई एम नॉट एबल टू टेल। इट्स माई फर्स्ट सिप ऑफ न्यू ग्लेनफिडिक। शायद ही ऐसी कोई ग्लेनफिडिक होगी जो मुझे आज तक पसंद नहीं आई। इज दिस गोना बी द फर्स्ट ग्लेनफिडिक 16 आई हेट? दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई हेड राइट नाउ। बिकॉज टेस्ट कैसे मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, ज़रूर थोड़ी हार्शनेस है मिड पैलेट पे। आपको पेपरी बाइट नहीं आ रहा, बट एक वुडी बाइट आ रहा है जो काफ़ी पंची है। इट्स क्वाइट अ पंची ड्रिंक। थोड़ा बहुत गर्माहट आ गई है, दिसंबर का महीना चल रहा है, कानों में गर्माहट आ गई है, और काफ़ी भारी भरकम ड्रिंक है यार। लेट्स ऐड सम आइस एंड मे बी सम वाटर, सम आइस नाउ फॉर पीपल लाइक दिस। मैं थोड़ा कंसेशन कर रहा हूँ, खाली दो आइस क्यूब डाल रहा हूँ मैं आज। तो यार आई जस्ट लेट दिस सिट फॉर 2 minutes और मैंने कोई पानी नहीं डाला अभी तक। ओके, सो ड्रिंक हैज सैट विद आइस फॉर 2 minutes। 2 मिनट बैठा है सिर्फ, पानी नहीं डाला अभी तक। अच्छी बात यह है कि स्मेल में वो शेरी की अजीब स्मेल नहीं है, वो पेपरी अंदाज नहीं है। बट क्या सिर्फ वुड ओकी कास्ट के साथ कैन दिस बी अ हिट? हैज़ टू बी अ हिट मैन। इट्स अ ग्लेनफिडिक 16 फॉर गॉड्स सेक। सही कहूँ तो मुझे थोड़ी बहुत ये ग्लेनमोरांजी की याद दिला रहा है। साथ ही साथ इसमें वो एक बॉसी नोट है जो मुझे बैल्बनी 12 की याद दिला रहा है। हल्का सा मिसिंग है वो पैलेट पे चमचमाती ग्लेनफिडिक 15 की खूबी। प्रॉब्ली माई फेवरेट विस्की ऑफ ऑल टाइम। आई जस्ट वांट टू से इट फॉर द प्राइस एंड एवरीथिंग। आई थिंक Glenfiddich 15 is the best whiskey you can get. What does 16 have? Does it have that punch? Does it have that nuanced approach? So far, it's kind of not doing that, if I'm being completely honest. But let's see. थोड़ी वन डायमेंशनल है बिकॉज इसमें ना तो वो फ्लेवर चेंजिंग वाला प्रोफाइल है। इट्स जस्ट व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इट्स वेरी लीनियर। इट्स लाइक अ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। You know, we get single malt so that we can experience a multitude of flavors. But on my palate right now, all I can sense is that oaky note. Bourbon हल्का फुल्का, but ज़्यादा कुछ भी नहीं है, to be fair. What happens if I add just some महंगा water? Just a little bit, okay? Allow me. ठीक है, इतना ही डाला है, कोई बात नहीं। एक प्रॉपर ड्रिंक भी बनाएंगे 60 ml के साथ। और just swirl it around for a minute as you saw. No, it's not doing anything. फील आ रही है एक वाइन की हल्की सी छुपी हुई, मॉल्टी फ्लेवर भी नहीं है ज़्यादा, ओकी है सिर्फ, which is so weird, right? अगर विस्की में खाली ओकी नोट्स होंगे, सिर्फ वुड वाले नोट्स होंगे तो कैसी विस्की होगी? जबकि क्लेम कर रही है इसमें बर्बन कास्ट में बनी है ये। बट हाय गाइस, जब तक मेरा ड्रिंक रेडी हो रहा है एक स्टोरी बताना चाहूँगा आपको। तो मैं Glenfiddich 16 मेरे को पता चला ये विस्की आई है मार्केट पे, तो इमीडिएटली आई वांटेड इट। तो मेरे एक अंकल आ रहे थे अमेरिका से, तो मैंने उनको बोला ले आना। मैंने डैड के थ्रू मैसेज भेजा है कि अंकल को बोलो प्लीज़ ले आना।
डन ने कहा ठीक है डन। अब क्या हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया, कब आ रहे हैं अंकल, वो लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, उनको ग्लेनफिडिक 16 वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मुझे पता चला ये नोएडा में मिल रही है 8,700 रुपये में। तो मुझसे रहा नहीं गया यार, मैंने कहा यार अंकल तो लेके आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो सेकंड विस्की आएगी इतनी अच्छी लगेगी मेरे को कि मैं वो भी रख लूँगा। आज अंकल आए, उनसे 1 घंटे पहले मैं मिला। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, अंकल सैम, लेट्स कॉल हिम दैट। ही गॉट मी, he could not find this, so he got me, he said I couldn't find it, so you know what I did, I got you a 15 and I got you an 18 and I was like hey भगवान यार मैं कितना लकी आदमी हूँ, क्योंकि 15-18 तो मेरी फेवरेट विस्कीज़ है ही। एंड द फैक्ट कि मेरे पास ये बॉटल है तो 2-2 बॉटल व्हाट एम आई गोना डू विद इट, एक गिव अवे करूँगा मैं क्या। पर ये गिव अवे ना यार ये अजीब चीज़ है, मुझसे हो नहीं पाते कभी ठीक से, बिकॉज मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ 500 लाइक कर दो, कोई 500 लाइक करते नहीं अपना वीडियो। खैर जो चीज़ नहीं मिली उस पर क्या रोना, अच्छी बात यह है कि 16 भी आ गई, 12 पड़ी है, 15 भी आ गई, 18 भी हाउसफुल है, हाउस कंप्लीट है, 21 भी इतने से बड़े। बताओ यार, लो कर लो बात। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना whether you like my little story. Thank you. फाइनली ये ड्रिंक डिसाइड करेगा ये अच्छा ड्रिंक है कि नहीं। और मैंने अगर नहीं भी कह दिया आज तो मुझे पता है ग्लेनफिडिक 16 किसी तरीके से बाद में भी मेरे पे ग्रो हो सकती है, ठीक है। बट एनीवेज बहाने ना हम खुद के बनाते हैं ना ग्लेनफिडिक के बनाते हैं। चीयर्स टू ग्लेनफिडिक 16। लेट्स सी इफ दिस इज अ गुड ड्रिंक और नॉट। ये ड्रिंक 5 में बैठ चुका है कम से कम। ऐसा लग रहा है साल की शुरुआत हो चुकी है। दिसंबर महीने में, दिसंबर 18 को साल की शुरुआत हो चुकी है। जैसे 2025 जा रहा था खींचे जा रहा है मुझे अपनी तरफ। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इतनी स्मूथ ट्रांजिशन तो मैंने यार कभी नहीं पी। सनटोरी टोकी भूल जाओ, हिबिकी भूल जाओ, ग्लेनफिडिक 15 जैसे पसंद आती है ना जो पैलेट पे छाती है, जिस मिठास और ब्रीफ इंटरप्रिटेशन के साथ ये फॉर्मुलेट हुई है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी डिलेक्टेबल, स्पेशली बिकॉज आई एडेड सम आइस एंड वाटर। अब ये देखिए ये एस्टूरी ब्लेंडेड वाटर है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आई प्रॉब्ली टैग इट, यू कैन गेट इट, इट्स जस्ट $300-400 मैन, एंड यू बाइंग अ 9,000 रुपी बॉटल, हु गिव्स अ एफ, ओके। या मैन ओ मैन ओ मैन। अब मैं कोशिश करूँगा इसको डिस्क्राइब करने की। मुझे पॉल जॉन बोल्ट के बारे में जो चीज़ अच्छी लगी थी, मुझे हिबिकी के बारे में जो चीज़ अच्छी लगी थी, और मुझे ग्लेनफिडिक 15 की जो एक्सप्रेशन है और 12 की जो मॉल्टी नेचर है ना ग्लेनफिडिक 12 का, वो मॉल्टी नेचर इसमें प्रेजेंट है। जो 15 की मिठास है वो इसमें मिसिंग है, कम मिठास है, बिकॉज दे हैव यूज्ड ओनली ओक वुड एक्सक्लूसिवली। अमेरिकन ओक वुड का बहुत ही अमेजिंग इंटरप्रिटेशन हुआ है, एंड जो मिठास इसको मिल रही है वो इसके वाइन एंड ओक कास्ट से मिल रही है, ठीक है, विच इज़ द अमेरिकन ओक वाइन कास्क। So overall, I think it's a very new expression. It will remind you of Suntory Toki, but not quite it. It'll remind you of Balvenie 12, but not quite that घटिया viscosity नहीं है Balvenie 12 वाली, घटियापन नहीं है, वो mothballs वाली घटियापन नहीं है। एक amazing oak है जो बहुत ही subtly sweet है। It's gonna remind you of Glenmorangie. It's gonna remind you of a Signet a little bit, but not quite that formidable. All in all, I'm struggling to explain it to you, but I'm going to give myself one fucking good try. It's a very nice, somewhat brief, bloomy, एक गुलिस्तान है इसमें, एक बगीचा है, एक खेल है, एक प्रगति है, बहुत ही नेचुरल टेस्टिंग विस्की है। ओक सुन के लोग घबरा जाते हैं, यार ओक होगा कैसा टेस्ट होगा। दिस इज़ अ वेरी नाइस नेचुरल tasting whiskey with very little peat, very little pepper, but फिर भी एक नुआंस है जो खाली ओक का है, और बस थोड़ा बहुत वाइन ओक कास्क होने के बावजूद आई थिंक इज़ अ वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। इज़ अ वेरी subtle whiskey. This is not for your extremists. Extremists will not like this.